Good morning, students. Today we have to carry up with our page number 36, last paragraph C. To go along up to the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade. जो ये word आया students manor, here the meaning of manor is farmhouse and be received by the owner like an old. Owner कौन है यहाँ पे? Here owner is ironmaster, like an old regimental comrade, like an old regimental comrade. What mean regimental? Here the meaning of regimental is of the same regiment. एक ही regiment में वो लोग काम करते थे. And जो comrade word है students, comrade word refer करता है colleague को, जो साथी होता है, companion होता है, colleague होता है. colleague के लिए use होता है comrade, right? तो that however did not please the tramp. See the next page. No, I could not think of it. No, I could not think of it, he said, looking quite alarmed. Who? Peddler. देखिए उसको डर भी लग रहा है peddler को. He is also get frightened or scared. I couldn't think of it, he said, looking quite alarmed. Why it is quite alarmed? Here the meaning of alarmed is, you can say frightened, right? डरा हुआ है वो, मीन्स उसको लग रहा है कि उसकी जो आइडेंटिटी है, रियल आइडेंटिटी, वो पता ना चल जाए. एंड उसी समय देखिए उसके माइंड में क्या थॉट आता है. ही थॉट ऑफ द 30 kroner टू गो अप टू द मैनर हाउस. वो 30 kroner जो उसने चुराए थे क्रॉफ्टर के घर से, ही स्टील्स द मनी, उसके बारे में सोचता है. एंड टू गो अप टू द मैनर हाउस, मैनर मीन्स फार्म हाउस, राइट, would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. देखिए उसको ऐसा लग रहा है, उसको अपने मन में जो है ऐसा आभास हो रहा है, मीन्स ऐसा रियलाइज हो रहा है कि उसने खुद को फेंक दिया है. himself voluntarily. What do you mean by voluntarily? Voluntarily means, here the meaning of voluntarily is willingly, right? Voluntarily means willingly into the लॉइंस डेन. डेन किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स? डेन इज अ सिनोनिम ऑफ गुफा, राइट, केव. तो डेन यहाँ पे क्या होगा? केव. जैसे मतलब खुद मौत को मुंह लगा लेना, खुद मुसीबत मोल ले लेना, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, दैट सॉर्ट ऑफ इडियम इट इज, राइट. लॉइंस डेन. ही ओनली वांटेड ए चांस टू स्लिप हियर इन द फॉर्ज. क्योंकि उसको सिर्फ क्या चाहिए? ही ओनली वांटेड टू चांस टू स्लिप हियर इन द फॉर्ज एंड देन स्नीक अवे एज inconspicuously as possible. देखिए, he only wanted a chance to sleep here in the forge. वो चाहता है कि बस उसे वहां पे रात को सोने को मिल जाए. And then sneak away as, what do you mean sneak away? Sneak away means go away or run away. लेकिन कैसे? Silently, right students? So here the meaning of sneak is go away or run away silently. चुपचाप वो वहां से निकल जाए. As inconspicuously as possible. What do you mean inconspicuously as possible? Inconspicuously means without being noticed, बिना किसी के नोटिस करे हुए, right? Without being noticed as possible. The ironmaster assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. The ironmaster assumed that. What do you mean assumed? आपने देखा होगा एग्जाम्स में भी assumptions के क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में. assumes मीन्स टू सपोज समथिंग इज नोन एज assumed. आप अंदाजा लगाते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं. प्रिडिक्ट इज समथिंग डिफरेंट. सपोज इज द राइट वर्ड फॉर assumed. दैट ही फेल्ट embarrassed because of his miserable clothing. He felt embarrassed. What do you mean embarrassed? Students, feeling uneasy is known as embarrassed. और आप एम्बेरसिंग सिचुएशन को ऐसे ही बोल सकते हैं, एन ऑकवर्ड सिचुएशन, राइट. बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग. व्हाट डू मीन मिजरेबल? स्टूडेंट्स, मिजरेबल मीन्स पिटिएबल, दयनीय. प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर. प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम. वो कहता है Please don't think that I have such a fine home that you cannot show yourself there. क्या मीनिंग है इसका?
कहता प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर. ही सेड एलिजाबेथ इज डेड एज यू. मीन्स these information given by whom? All this information given by the ironmaster to the peddler because he thinks that the peddler is Captain Von Stelle. Means he was his old acquaintance. That's why he's talking about his past to the peddler, right? You cannot show yourself there, he said. Elizabeth is dead. Who is Elizabeth? Elizabeth is the wife of ironmaster. कहते हैं वो मर चुकी है. As you may already have heard, तुमने सुना ही होगा उसके बारे में. मतलब उसको अपने जान पहचान वाला समझ के बात कर रहा है ironmaster जो है. My boys are abroad. जो मेरे लड़के हैं वो abroad. Abroad means स्टूडेंट्स abroad जो वर्ड है उसके लिए कई वर्ड्स होते हैं. abroad मीन्स ओवरसीज भी बोल सकते हैं हम, या इन सम फॉरेन कंट्री भी बोल सकते हैं, विदेश में होते हैं तो हम abroad बोलते हैं ना. एंड देर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ. और घर पे सिर्फ हम दो लोग हैं, एक मेरी ओल्डेस्ट डॉटर है और एक मैं हूँ. अब देखिए स्टूडेंट्स, जो फोर्थ कैरेक्टर है उसका नाम है आएगा एडला. जो मैंने बताया था एडला इज ए सिंबल ऑफ लव. एडला इज द ironmaster's daughter, right? We were just saying that it was too bad we didn't have any company for Christmas. Now come along with me. कहते हैं क्रिसमस पे हमारे को कंपनी देने वाला कोई नहीं है. So now come along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster. What do you mean disappear here? स्टूडेंट्स वैसे तो डिसअपियर को अगर हम बोलेंगे गायब होने से मतलब बोलेंगे तो वर्ड कन्वर्ट हो जाएगा वैनिस्ड में. वैनिश मीन्स गायब होना. लेकिन क्योंकि डिसअपियर वर्ड यहाँ पे फूड के लिए यूज करा गया है तो ये डिसअपियर वर्ड कन्वर्ट हो जाएगा, ड्राइव हो जाएगा किसमें? कंज्यूम्ड में. सो हियर द मीनिंग ऑफ डिसअपियर इज कंज्यूम्ड, क्योंकि फूड को हम क्या करते हैं? कंज्यूम्ड करते हैं, राइट? सो हियर द मीनिंग ऑफ डिसअपियर इज कंज्यूम्ड ए लिटिल फास्टर. Faster means quickly, right? But the stranger said no. And no, and again no. Let's see. See the hesitation in Peddler's mind because he is not Captain Von Stelle. He is a peddler, and he is frightened or scared. But the stranger said no, and again no. And the ironmaster saw that he must give in. Give in क्या होता है? Give in. जब आप किसी के सामने हार मान लेते हैं, मीन्स यू सरेंडर, राइट? गिव इन मीन्स सरेंडर करना. उसको ऐसा लगता है कि यार ये तो नहीं आएगा, इसने तो सरेंडर ही कर दिया है. एट दैट टाइम क्या बोलता है देखिए आयरनमास्टर, इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टेले, क्योंकि वो तो उसको वॉन स्टेले ही समझ रहा है, कैप्टन वॉन स्टेले प्रीफर टू स्टे विद यू टुनाइट. व्हाट डू यू मीन प्रीफर्ड? स्टूडेंट्स हम कहते हैं यार अपनी लाइफ में प्रायोरिटीज सेट करो, प्रेफरेंस सेट करो. प्रेफरेंस मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस हमारे माता पिता, फिर सेकंड प्रेफरेंस हमारी पढ़ाई, देन थर्ड प्रेफरेंस स्पोर्ट्स. इस तरीके से मैं बात करता हूँ. सो हियर द मीनिंग ऑफ प्रीफर्ड इज शॉर्ट प्रायोरिटी, प्राथमिकताएं, राइट? आपकी लाइफ में प्राथमिकताएं सेट करनी पड़ेंगी आपको. टू स्टे विद यू टुनाइट. स्टेजरस्टॉर्म he said to the master blacksmith. What is stratagostorm? Students, stratagostorm जो आप देख रहे हैं, जो ये वर्ड है, it's a Swedish word, right? And is a very rare surname के लिए यूज होता है ये, which has its own origin in Spain. Spain के अंदर generally it is used in Spain. And he said to the master blacksmith and turned on his heel. Who turned on his heel? Ironmaster. Turned on his heel एक phrase है students. Turned on his heel means भाग गया. Ran away is known as, underline करिए आप इसको. Turned on his heel means ran away. But he laughed to himself as he went away, and the blacksmith who knew him understood very well that he had not said his last word. But he laughed to himself and as he went away, and the blacksmith who knew him, blacksmith know whom? Blacksmith know ironmaster, understood very well that he had not said his last word. कि जो उसको लास्ट में कह के जाना चाहिए था वो अभी नहीं कह के गया है. Means he knows his master very well. It was not more than half an hour
before they heard the sound of carriage. It was not more than half an hour. अभी आधा घंटा ही हुआ था. Before they heard the sound of carriage. जब उन्होंने गाड़ी की आवाज़ सुनी. Wheels outside the forge. Right? Forge means furnace के बाहर. And a new guest came in. And a new guest came in. But this time it was not the Iron Master. लेकिन इस बार वो Iron Master नहीं था. He had sent his daughter. देखिए वो घर चला गया है. उसका जो एफर्ट था पैडलर को घर लाने का, कैप्टन वॉन स्टेलो को घर लाने का, वो फेल हो गया है. तो उसने देखो क्या करा है. उसके जाने के इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर, आधा घंटा भी नहीं हुआ था. बिफोर दे हर्ड द साउंड. बिफोर दे मीन्स वहाँ पे जो ब्लैक स्मिथ है, जो बॉय है, जो पेडलर है, दे हर्ड द साउंड ऑफ ए कैरेज व्हील्स आउटसाइड द फॉर्ज. फॉर्ज मीन्स फर्नेस. एंड ए न्यू गेस्ट केम इन. अब एक नया गेस्ट आ गया. देखो अब मैं लास्ट कैरेक्टर जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इस चैप्टर का, उसका एंट्री होगी अब, जो मैंने आपको बताया भी था समरी पार्ट में. एडला. Edla means Iron Master's daughter, right? New guest came in, but this time it was not the Iron Master. He had sent his daughter, apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself. Apparently hoping. Apparently means outwardly. उसको बाहरी रूप से ऐसी hope है, ऐसी आशा है that she would have. She would have means Edla would have better powers of persuasion. Students, what do you mean by persuasions? अच्छा वर्ड है ये persuasion. किसी को मनाने की प्रोसेस को हम कहते हैं persuade करना. Means bringing round is known as persuasion. Then he himself, she entered followed by a valet, right? She entered means Edla entered. Edla आई वहां पर, उसने एंट्री करी और उसके पीछे पीछे कौन है? Followed by a valet. Valet means स्टूडेंट्स वैलेट सर्वेंट को भी बोलते हैं. आपके साथ कोई पे अटेंडेंट है, उस अटेंडेंट को भी बोलते हैं, नौकर को बोलते हैं वैलेट. वैसे कैरिंग ऑन हिज आर्म ए बिग फर कॉट. शी वॉज नॉट मीन्स सी द अपीरियंस ऑफ एडला. शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी. ज़्यादा वो प्रिटी मीन्स ज़्यादा अट्रैक्टिव या ब्यूटीफुल नहीं है, बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाई. मॉडेस्ट मीन्स मतलब बड़ी जेंटल है, बड़ी पोलाइट है, राइट? She is a gentle type of lady. And quite shy, थोड़ी शर्मीली भी है. In the forge, everything was just as it had been earlier in the evening. The master blacksmith and his apprentice still sat on their bench. What do you mean apprentice? Students, कई बार हम यूज करते हैं lot of time कि he is an apprentice mechanic, right? तो अप्रेंटिस जो वर्ड है, अप्रेंटिस दो तरीके से यूज होता है. ट्रेनी के लिए भी यूज होता है अप्रेंटिस वर्ड, हेल्पर के लिए भी यूज होता है, राइट? तो जो मास्टर ब्लैक स्मिथ है और उसका जो अप्रेंटिस मतलब उसका जो हेल्पर है, जो दूसरा वहां पे इंसान है, स्टिल सेट ऑन देयर बेंच, वो बेंच पर बैठे हुए हैं. एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस. सी द अपीरियंस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस, राइट? And charcoal still glowed in the furnace. Glowed means burnt with a shine is known as glowed, जो कि सुलगते हुए जल रहा है भट्टी में. और क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? The stranger had stretched himself. देखिए, the stranger had stretched himself out on the floor. Stretched means spread out. Here the meaning of stretched is spread out, right? फैल गया. himself out on the floor means पेडलर वहां पे जमीन पर लेट गया. and lay with a piece of pig iron under his head. जैसे सिर के नीचे हम तकिया लगा लेते हैं, तो उसने कच्चा लोहे का जो टुकड़ा है वो सिर के नीचे लगा लिया है. and his hat pulled down over his eyes. और अपनी जो टोपी है उसको अपनी आंखों की, जैसे कई बार रोशनी होती है तो हमें नींद नहीं आती है तो हम अपनी आंखों को ढक लेते हैं. That sort of thing is there, right? As soon as the young girl caught sight of him, देखिए, as soon as the young girl caught sight of him, young girl is Edla, she went up and lifted his head. What do you mean lifted? She went up, एकदम she went up means Edla went up and lifted his head. उसने उसकी जो हेड थी
उसको लिफ्टेड किया मीन्स उठाया, मीन्स पिक्ड अप किया. एंड द मैन, हियर द मीनिंग ऑफ लिफ्टेड इज पिक्ड अप. द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन. द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू, व्हाट में एविडेंटली, हियर द मीनिंग ऑफ एविडेंटली इज क्लियरली. कैसे, मैंने क्लियरली क्यों बोला? जैसे पुलिस को अगर मुजरिम के खिलाफ एविडेंसेस मिल जाते हैं तो केस बिल्कुल क्लियर हो जाता है, क्लियर, राइट. इस सेंस में मैं इस एविडेंटली वर्ड को कन्वर्ट कर रहा हूं क्लियरली में, राइट. द मैन वॉज क्लियरली यूज टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन. He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened. He jumped up abruptly. What do you mean by abruptly? Here the meaning of abruptly is suddenly, अचानक से, ठीक है. abruptly suddenly का सिनोनिम है, राइट. seemed to be quite frightened, एकदम से अचानक से वो उछल कर एकदम से उठा. and seemed to quite frightened. what do you mean frightened? scared, डरा हुआ था. जैसे ही वो उठा, नाउ सी द फर्स्ट लाइन सेड बाय एडला, द फर्स्ट वर्ड्स. देखिए एडला बोलती है, कहती है, माई नेम इज एडला विल्मिंसन, सेड द यंग गर्ल, एंड माई फादर केम हाउस एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप here in the forest tonight, and then I asked permission to come and bring you home to us. I am so sorry, Captain, that you are having such a hard time. In these lines, I think you understand the generous, the soft-hearted nature of Adla Wilmington, that Adla is a symbol of love, and love is used as a potent force. She is a very kind-hearted girl, and in these lines you will see the hospitality of Adla, right? Hard. जब ये सब बातें एडला ने बोली, मीन्स दिस टाइप ऑफ सिंपैथेटिकल वर्ड्स सेड बाय एडला, तो एडला ने उसको देखा दोबारा से. शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली विद हर हैवी आईज. शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली. कंपैशनेटली मीन्स सिंपैथेटिकली. जब आप किसी को सहानुभूति से देखते हैं तो उसको कंपैशनेटली बोलते हैं. with her heavy eyes, and then she noticed that the man was afraid. And then she noticed, और तब उसने, she noticed means ध्यान किया, took notice of something is known as noticed, that the man was afraid. जो man था वो afraid था. Either he has stolen something or else he has escaped from jail. Either he has stolen something. देखिए, then she noticed that man was afraid. जब एडला ने देखा कि यार वो कुछ डरा सा हुआ है, जो पेडलर है डरा हुआ है, और there is a assumption made by एडला, एक अनुमान लगाया कि वो क्यों डरा हुआ है. क्या लगाया? Either he has stolen something or else he has escaped from jail, right? Either he has stolen something or else he has escaped from jail. या तो इसने कोई चोरी करी है, या फिर ये जेल से भागा हुआ है. She thought and added quickly, you may be sure, Captain, that you will be allowed to leave us just as freely as you came. Only please stay with us over Christmas Eve. ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर मीन्स क्रिसमस आप हमारे साथ मनाइए, हमारे साथ क्रिसमस. देखिए आपने देखा एडला ने दो एजम्पशंस लगाए, अनुमान लगाए कि या तो इसने चोरी करी है या जेल से भागा. ऐसा दिख रहा है, उसको देखकर ऐसा लग रहा है. इट सीम्स टू बी, इट अपीयर्स टू बी. और देखिए अभी आपको चैप्टर में पता चलेगा कि जो एडला का फर्स्ट एजम्पशन है वो ठीक है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि वो उसने चोरी करी है. ही स्टील्स द मनी फ्रॉम द क्रॉफ्टर, द 30 kroner रुपीज, 30 kroner. She said this in such a friendly manner. देखिए इतना उसने काइंडली कहा. She said this in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence in her. कि उसको उस पर ट्रस्ट हो गया, कॉन्फिडेंस आ गया. एंड वो बोला, कुछ बोला. It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss. He said, I will come at once. It would never have occurred to me that you would bother with me yourself. Here the meaning of bother is worry, कि आप मेरी वजह से परेशान हो रहे हो. With me yourself, miss. He said, I will come at once.
ही सेड आई विल कम एट वंस. एट वंस मीन्स वही जो मैंने अभी आपको बताया था, इमीडिएटली, सडनली, अचानक से. अभी वर्ड आया था ना एब्रप्टली, वही आ गया दोबारा. मीन्स फाइनली, इस पॉइंट पे फाइनली जो पेडलर है, पेडलर रेडी हो गया है एडला के साथ जाने के लिए, और एडला के द्वारा लाया गया जो कोट है उसको वो एक्सेप्ट भी करेगा. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस लाइन, पेज नंबर 38. ही एक्सेप्टेड द फर कोट. राइट स्टूडेंट्स, टेक केयर.